अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं डॉक्टर सिद्रा फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो वी वर डिस्कसिंग एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, वी हैव डिस्कस सो फार द डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स एंड द इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स प्राइमरीली जो हैं दे आर बीइंग यूज्ड parenterally except for one of them, dabigatran. ठीक है, and in today's lecture we'll discuss about the oral anticoagulants which include the prototype warfarin and the coumarin anticoagulants. पारेंट्रल का प्रोटोटाइप है हेपरिन एंड ओरल का है एंटीकोगुलेंट्स का है प्रोटोटाइप वारफेरिन, नीदर टाइम टेस्टेड ड्रग्स। ठीक है जी। अच्छा जी, तो बिट अबाउट इट्स ओरिजिन फर्स्ट बेटा। दिस वाज बेसिकली obtained फ्रॉम अ ग्रास लैंड, अ प्लांट नोन एज स्वीट क्लोवर। ठीक है, इट वॉज फाउंड कि द एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है इट वॉज coumarin, and when this plant decayed, this coumarin was converted into dicumarol, which had anticoagulant potential. Okay, and warfarin is basically a congener of this dicumarol. And officially, its use as anticoagulant began back in 1950s. Okay, so this is the time-tested drug. We know all about its characteristic in detail, and what are the drawbacks. Okay, at the end of the topic, you should be able to enumerate them because they are important. तो न्यू ड्रग्स हैं, उनका कंपैरिजन MCQs में ख़ास तौर पे जो है बेटा, हेपरिन का वारेंट्रल की नई ड्रग्स के साथ कंपैरिजन, इस तरह वारफेरिन का विद न्यू ओरल एंटीकोगुलेंट्स, यू शुड बी एबल टू कंपेयर देम विच इज़ द बेटर वन। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं तो कंपेयर करनी आती हैं। Now the mechanism of action of warfarin. It basically blocks what are the gamma carboxylation of several clotting factors which are occurring in the liver under vitamin K. ठीक है जी, gamma carboxylation of clotting factor by vitamin K activates them. By blocking this gamma carboxylation of factors 2, 7, 9 and 10, so basically warfarin prevents the activation of these clotting factors. Okay, this is dependent on vitamin K. Other than that, it also blocks the activation of endogenous anticoagulant, which are protein C and S. And इनका रोल जो है we discussed in the opening lecture of the anticoagulant, जो आपको पढ़ाया था उसमें फिजियोलॉजी बताई थी कि एंडोजिनस एंटीकोगुलेंट कौन से हैं, प्रोटीन C और S, ये उनकी एक्टिवेशन भी रोकता है। अच्छा जी, नाउ दिस कार्बोक्सिलेशन जो हो रही थी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है पहले बेटा। ये कार्बोक्सिलेशन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 and 10, दिस इज अकरिंग इन द लिवर एंड दिस इज कैरिड आउट नॉर्मली बाय द वाइटामिन K। ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ द डायग्राम जो आपको शो की गई है बेटा, यू कैन सी एट द top arrow, this is showing the carboxylation of the clotting factors occurring 2, 7, 9, 10 and protein C and S. ठीक है, this is being carried out by the vitamin K, H2. This is the reduced form of the vitamin K which carries out this step, and it is in the process it is being converted into the oxidized form vitamin KO once the carboxylation of the clotting factors is complete. Carboxylation क्या कर रही है? This is activating these clotting factors. Where the warfarin plays a role in this normal physiological process that is occurring in the liver. वो क्या करता है बेटा, द वाइटामिन K जो है आपने देखा है कि इन द प्रोसेस इट इज़ बिंग कन्वर्टेड इनटू द एपॉक्साइड फॉर्म, KO फॉर्म विच द इनएक्टिव फॉर्म। अभी बॉडी इसको दोबारा कन्वर्ट करती है इनटू द एक्टिव वाइटामिन K H2 फॉर्म, जिसको हम कहते हैं एक्टिव हाइड्रोक्विनोन फॉर्म, by there is an enzyme known as epoxide reductase which converts it back into the active vitamin K form, and then this active vitamin K will carry out the carboxylation step. So this is where the warfarin plays a role. It inhibits the enzyme vitamin K epoxide reductase which converts your vitamin KO, which is the inactive form of the vitamin K, into this active vitamin K H2 form, which is the hydroquinone form. So basically by inhibiting this enzyme it is preventing the activation of vitamin K, and this ultimately prevents what? The carboxylation of these clotting factors. So this results in incomplete coagulation factors which are biologically inactive. So mechanism में you have to elaborate first the normal mechanism, and then you have to tell the role of the warfarin, so where it is playing its role. अच्छा जी, now the kinetics of warfarin.
which is administered as sodium salt, and as we have discussed, it is the prototype of the oral anticoagulant, so it is given orally और 100% बायोअवेलेबिलिटी है. अच्छा जी, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट इज़ लॉन्ग ड्यू टू द फैक्ट कि बेटा ऑलमोस्ट 99% जो है इट इज़ बाउंड एक्सटेंसिवली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन. दिस प्रोलॉन्ग्स इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन टू ऑलमोस्ट 36 आवर्स. अच्छा जी, ठीक है, ओरली दिया, गुड बायोअवेलेबिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ प्रोलॉन्ग ड्यू टू एक्सटेंसिव प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, एंड द ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है दिस इज़ द ड्रॉबैक. वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ वारफेरिन यूज जो है दिस इज़ द डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन. ठीक है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 8 to 12 आवर्स बिफोर इट्स एंटी कोगुलेंट एक्शन बिगिन. ठीक है, दिस इज़ अ ड्रॉबैक व्हेन यू हैव टू गिव इन एमरजेंसी कंडीशंस में यू कैनॉट रिलाई टोटली ऑन वारफेरिन यूज. यू हैव टू ओवरलैप इट with some other parenteral anticoagulant for immediate effect. Okay, this is one of the drawbacks. उसकी वजह क्या है बेटा डिलेड ऑनसेट की? क्योंकि जो ऑलरेडी फॉर्म क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 2, 7, 9, 10, ठीक है, जब तक दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी, अनलेस एंड अंटिल दे आर डिग्रेडेड, अनलेस एंड अंटिल दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, इट्स एंटीकोगुलेंट एक्शन वोंट बिगिन. ये डिले ये बेशक रोक दे द सिंथेसिस ऑफ 2, 7, 9, 10 जो ऑलरेडी फॉर्म्ड है उनकी हाफ लाइफ पे डिपेंडेंट है. ठीक है, उसमें सबसे पहले जो शॉर्ट जाते 6 आवर्स कम से कम लगते हैं. फैक्टर 7 की हाफ लाइफ है. ठीक है, फैक्टर 9 की ऑलमोस्ट 24 आवर्स है. इसी तरह वंस दे आर एक्सक्रीटेड देन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिगिन करता है इसको. तो इट हैज़ गॉट डिलेड ऑनसेट. अच्छा, नाउ द टॉक्सिसिटी ऑफ वारफेरिन. एंटीकोगुलेंट्स की बेटा मोस्ट कॉमन जो है ऑब्वियसली दैट इज़ ब्लीडिंग. Secondly, another drawback with the warfarin use, okay, it cannot be used during pregnancy. Why? Okay, you have to shift to another anticoagulant during pregnancy due to the fact it crosses the placenta, so it can cause hemorrhagic disorder in the fetus. Secondly, fetus में it also blocks the gamma carboxy glutamate residues जो हैं present in the bone and blood. उनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन भी रोकता है. तो इट कैन अदर देन द हेमरेजिक डिसऑर्डर इन द फीटस, इट कैन ऑल्सो कॉज सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द बोन एंड ब्लड रिलेटेड abnormal bone formation in the fetus. Due to these two facts, this is an MCQ point as well. पूरा सिनेरियो बना देते हैं मुश्किल सा. प्रेगनेंसी में एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं तो यू हैव टू शिफ्ट नाउ. कौन सा यूज़ कर सकते हो, कौन सा नहीं यूज़ कर सकते. यू कैन यूज़ हेपरिन सेफली because it does not cross the placenta, but you cannot use warfarin. ठीक है, due to these two facts. अच्छा जी, other than these two facts बेटा, it also can cause cutaneous necrosis and infarction of the breast, fatty tissues, intestine and extremities due to increased incidence of venous thrombosis ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ थेरेपी. और दिस इज़ द पैराडॉक्सिकल इफेक्ट. पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्या होता है? हम कह रहे हैं एंटीकोगुलेंट है, ये क्लॉट फॉर्मेशन रोकता है, बट इसके एडवर्स इफेक्ट में इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस आ रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ थेरेपी. उल्टा इफेक्ट कह लो, पैराडॉक्सिकल इफेक्ट. दिस इज़ अगेन रिलेटेड टू इट्स मैकेनिज्म. यू हैव टू रिमेंबर कि अदर देन इनहिबिटिंग द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10, ठीक है, इट वॉज ऑल्सो इनहिबिटिंग द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन CNS. ठीक है, विच आर हमने फिजियोलॉजी को यू हैव टू रेफर टू द फिजियोलॉजी जो आपको ओपनिंग लेक्चर में बताया था कि प्रोटीन CNS आर द नॉर्मल एंडोजिनस तो बॉडी के अंदर ही बनते हैं, एंटीकोगुलेंट्स हैं. ठीक है, दे नॉर्मली प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, तो ये उनकी सिंथेसिस भी रोकता है. दैट्स वाई ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ थेरेपी देयर कैन बी इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस एंड इन्फेक्शन ऑफ द फैटी टिश्यूज़ और वगैरह की जो है थोड़ी बहुत हो सकती है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ थेरेपी. व्हेन इट्स एंटीकोगुलेंट एक्शन टेक्स ओवर दैट इज़ मोर पोटेंट, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म ये क्लॉटिंग का इंसिडेंस कम ही करता है. बट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ थेरेपी दिस एडवर्स इफेक्ट कैन बी सी. अनदर ड्रॉबैक आप कह सकते हो छोटा मोटा, दिस इज़ नॉट टेम्प्रेरी है. अच्छा जी, नाउ द मॉनिटरिंग. ठीक है जी, मॉनिटरिंग ऑफ एंटीकोगुलेंट ड्रग्स जो है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट SCQ वाइज एज वेल. ठीक है, इसमें बेटा इट इज़ हमने देखा था हेपरिन जो था इट वाज मॉनिटर्ड थ्रू APDT. ठीक है, PT और जो आपका वारफेरिन है दिस इज़ मॉनिटर्ड थ्रू PT टाइम, दिस इज़ योर प्रोथ्रोम्बिन टाइम.
प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो मेजर करता है आपकी एडिक्वेसी ऑफ योर एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवेज ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्योंकि जो आपका वॉरफेरिन है जिन फैक्टर्स पे इफेक्ट कर रहा है 2, 7, 9 एंड 10, दीज आर द फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन द कॉमन पाथवे जहाँ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मिल जाते हैं। फैक्टर 2 आ जाता है, फैक्टर 10 आ जाता है, ये उन पर इफेक्ट कर रहा था। और जो फैक्टर 7 है दिस इज़ योर एक्सट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी एडिक्वेसी चेक करने के लिए कि उनका फंक्शन एंड अमाउंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स नॉर्मल है, ये उसके लिए हम देखते हैं। और क्योंकि वो इन फैक्टर्स को इफेक्ट कर रहा है जो इसमें इन्वॉल्व हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में और कॉमन पाथवे में, वॉरफेरिन उन पर इफेक्ट करता है, तो वी मेजर पीटी टाइम। ठीक है जी, इसमें हमारा जो बेटा टारगेट होता है फॉर इफेक्टिव एंटी कोगुलेशन, हमने पीटी को प्रोलॉन्ग करना है। इट शुड टेक लॉन्गर टाइम फॉर क्लॉट फॉर्मेशन टू फॉर्म नाउ इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो उसकी कितनी हमने प्रोलॉन्ग करनी है, ऑलमोस्ट 25% तक। ठीक है जी, और इसके लिए जो आपको एक टर्म बनाई गई है जो इंटरनेशनली हम मॉनिटर करते हैं, दिस इज़ इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR। दिस इज़ द रेशियो ऑफ द पीटी। ठीक है, पेशेंट पीटी ओवर नॉर्मल पीटी जो भी लैब के लिए होती है, हर लैब की थोड़ी बहुत वेरी करती है। ठीक है, दिस इज़ द रेशियो वी आर चेकिंग, वी आर नॉट चेकिंग जस्ट द नॉर्मल पेशेंट पीटी टाइम, वी आर टेकिंग द रेशियो, वी आर कंपेयरिंग इट विद द नॉर्मल पीटी। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर INR रेशियो, दिस इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द वॉरफेरिन एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। अच्छा जी, तो रिकमेंडेशन जो है INR की फिर प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी, दैट इज़ प्रिवेंशन, एंड फॉर ट्रीटमेंट के लिए भी फ्रॉम मोस्ट ऑफ द थ्रोम्बोटिक डिजीज़ के लिए ये रेशो होनी चाहिए 2 to 3 के दरमियान फॉर इफेक्टिव एंटीकोगुलेशन। ठीक है, इससे ज़्यादा करोगे तो क्या होगा बेटा, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। इससे कम रखोगे रेशो ये तो क्या होगा, इट वोंट बी कॉज इफेक्टिव एंटीकोगुलेशन। ठीक है, रिस्क रहेगा क्लॉट फॉर्मेशन का। इट शुड फॉल विद इन दिस रेंज 2 to 3। लेकिन विद पेशेंट्स विद सम टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व्स, ठीक है, जहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज रिस्क होता है थ्रोम्बोसिस का, वहाँ पे ये रेशियो ज़रा ज़्यादा रखनी पड़ती है 2.5 to 3.5। ठीक है, बस आपको INR रेशियो थोड़ा सा पता हो क्या होती है और कितनी नॉर्मल रखनी चाहिए फॉर इफेक्टिव एंटीकोगुलेशन। अच्छा जी, वन ऑफ अनदर ड्रॉबैक ऑफ द वॉरफेरिन यूज़ जो है फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है बेटा, दिस इज़ द ड्रग इंटरेक्शन। इट हैज़ गॉट वाइड स्प्रेड ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, एक पूरा डब्बा बना हुआ है आपके लिए फैक्टर्स जो इसकी एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बढ़ाते हैं एंड द फैक्टर्स जो इसके एंटीकोगुलेंट इफेक्ट कम करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट बॉक्स एज सच। ठीक है, उसमें देयर 2 काइंड ऑफ इंटरेक्शन, आपको असल में तो सिर्फ वो डब्बा ही आना चाहिए। ठीक है, मैकेनिज़्म उनके ना भी पता हो तो गुजारा हो जाएगा, बट यू शुड आने चाहिए, फिर भी मैकेनिज़्म पता होने चाहिए। ठीक है, 2 टाइप ऑफ इंटरेक्शन है बेटा, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस होते हैं और एक फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शंस होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस क्या है बेटा, काइनेटिक के प्रोसेस क्या थे आपके, ऑब्जॉर्प्शन, जो चीज़ इसकी ऑब्जॉर्प्शन को छेड़ेगी, बढ़ाए या कम करे। मेटाबॉलिज्म, जो चीज़ इसकी मेटाबॉलिज्म को छेड़ेगी, वो आपके इंड्यूसर्स हो सकते हैं, आपके इनहिबिटर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो इंड्यूस करते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स वो मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, तो इसका एंटीकोगुलेंट इफेक्ट कम हो जाएगा, उसमें आपके बारबिचुरेट्स आ जाएंगे, रिफेम्पिन आ जाएगा, एंटी-टीबी ड्रग। ठीक है, इसी तरह जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, लाइक आप GIT में पढ़ के आए सिमेटाडीन, एंटीफंगल में पढ़ के आए कीटोकेनाजोल, वो क्या करेंगे, दे विल इनहिबिट इट्स मेटाबॉलिज्म, तो इसका एंटीकोगुलेंट इफेक्ट इन्हांस हो जाएगा। ठीक है जी, तो काइनेटिक्स में आपके एब्जॉर्प्शन के लेवल पे आ गया, आपके मेटाबॉलिज्म के लेवल पे आ गया, आपके एक्सक्रीशन पे लेवल पे आ सकता है, कोई एक्सक्रीशन इनहिबिट कर रहा है या इन्हांस कर रहा है। इस तरह आपकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमने देखा था वॉरफेरिन की, इट इज़ एक्सटेंसिवली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, तो जो ड्रग्स इसको डिस्प्लेस करेंगी फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइड, दैट कैन ऑल्सो इन्हांस द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। ठीक है, दीज आर द इंटरेक्शंस विच आर नोन एज फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस। फिर है जी डायनामिक इंटरेक्शंस, वो ड्रग्स जो इसके मैकेनिज़्म को इन्हांस कर रही हैं। ठीक है, उसमें या इनहिबिट कर रही हैं, लाइक जैसे विटामिन के अगर आप दे दो एक्सोजेनसली तो इट विल कंपीटिटिव एंटागोनिज्म करेगा। ठीक है, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज पे ये कर रहा था ना, तो इट वाज कन्वर्टिंग द विटामिन के को फॉर्म एक्टिव से एक्टिव फॉर्म में, तो आप एक्टिव विटामिन के दोगे तो दैट विल compete with it। ठीक है, दिस इज द इंटरेक्शन एट द लेवल ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लाइक और कैसे हो सकता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये उनकी एक्टिवेशन रोकता है, तो देयर आर डिजीज़ लाइक हेपेटिक डिजीज़ जिसमें
क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस कम हो जाती है और कम हो जाएगी। वॉरफेरिन ने रोक दी, दूसरा हेपेटिक डिजीज़ में और क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस रुक जाएगी। दिस इज सिनर्जिज्म मैकेनिज्म के लेवल पे। तो ठीक है, ये आपने बॉक्स याद कर लेना है और थोड़ा सा आपके जहन में हो काइनेटिक इंट्रैक्शन और डायनामिक इंट्रैक्शन जो हैं। अच्छा जी, जैसे एडिशनल का एक एंटीकोगुलेंट में टॉपिक है आपका मॉनिटरिंग, जो बाकी आप चैप्टर्स में इतना नहीं पढ़ते हो। इसी तरह इसमें और इम्पॉर्टेंट है द रिवर्सल ऑफ देयर इम्पैक्ट इन केस ऑफ एक्सेस, क्योंकि इनकी एक्सेस जो है दिस कैन नॉट बी लेफ्ट अनचेक्ड। ठीक है, कि खुद ही सबसाइड कर जाएगी, इट कैन लीड टू ब्लीडिंग, इट कैन बी फेटल। तो वी हैव गॉट एंटीडोट्स अवेलेबल। ठीक है, हेपरिन के लिए हमने देखा था प्रोटामीन था। इसमें भी अगर बेटा इन केस ब्लीडिंग स्टार्ट्स तो यू हैव रिवर्स कैसे करना है इफेक्ट, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम। तो सबसे पहले तो बेटा यू शुड नो क्या है जी, द ओरल और पारेंटल विटामिन K1, दिस इज नोन एज फाइटोनेडियोन, वो अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो सकता है विच कंटेन्स द क्लॉटिंग कॉन्सेंट्रेट्स। ठीक है, इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेंट्रेट्स हैं। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7A है। दे ऑल कैन बी यूज इन केस ऑफ ब्लीडिंग। सिवियर ब्लीडिंग है तो विटामिन IV विटामिन K तो मैंडेटरी है, लेकिन उससे पहले फॉर रैपिड एक्शन के लिए वी हैव टू गिव आइदर प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स और रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7A एज वेल। ठीक है जी, तो यू शुड नो ये 2-3 ऑप्शंस क्या हैं इन केस द ब्लीडिंग स्टार्ट। यू शुड हैव ओरल और पारेंटल प्रेफरेबली विटामिन K1 फाइटोनेडियोन एंड द फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स हैं ऑफ प्रोथ्रोम्बिन और रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7A। और अगर ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो इवन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कैन बी गिवन बिकॉज इट कंटेन्स एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स। अच्छा जी, अब एंटी थ्रोम्बोटिक यूजेस क्या हैं एंटीकोगुलेंट्स के, बोथ हेपरिन एंड वॉरफेरिन। पहले तो बेटा प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंट करने के लिए देयर आर कंडीशंस लाइक वेयर द पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस। नाउ यू हैव टू रिमेंबर जो एंटीकोगुलेंट्स हैं बेटा दे आर प्रेफरेबल फॉर वेनस थ्रोम्बोसिस के लिए प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। एज़ कम्पेयर टू दैट हम एंटीप्लेटलेट पढ़ेंगे, दे आर मोर इफेक्टिव फॉर आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। ये हमने शुरू में देखा था कि जो वेनस क्लॉट्स हैं दे आर मोर कोगुलेशन कैस्केड उसमें एक्टिव होता है। ठीक है, एंड एज़ कम्पेयर टू दैट जो आर्टीरियल ब्लड है दैट इज़ हाई प्रेशर ब्लड, वहाँ पे जो आपके क्लॉट्स होते हैं दे आर प्राइमरीली प्लेटलेट रिच। वहाँ पे आपका कोगुलेशन कैस्केड को इतना मौका नहीं मिलता टू डिपॉजिट द फिब्रिन ड्यू टू द हाई प्रेशर इन द आर्टरीज। ठीक है, तो यू हैव रिमेंबर थोड़ा सा पॉइंट अगर याद रहे, आर्टरीज में जो है तो क्लॉट्स आर प्लेटलेट रिच, तो देयर वी प्रेफर फर्स्ट एंटी प्लेटलेट्स। जो वेनस थ्रोम्बोसिस है वहाँ पे वी प्रेफर द एंटीकोगुलेंट्स इनिशियली। अल्टीमेटली जब बहुत एक्सटेंसिव हो जाती है तो दोनों ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंट करने के लिए वेनस थ्रोम्बोसिस वी कैन गिव बोथ आइदर हेपरिन और वॉरफेरिन। ठीक है, उसमें जो है जी आपके जो हेपरिन है उसमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और फोंडापेरिनॉक्स का जो है दे हैव गॉट द एडवांटेज कि उनके एडवर्स इफेक्ट कम है, उनके साथ मॉनिटरिंग लेस रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन एंड वॉरफेरिन। इन दोनों के साथ यू हैव टू मॉनिटर, तो दे आर द प्रेफरेबल ऑप्शन प्रिवेंशन के लिए, सबकुटेनियसली एडमिनिस्टर कर। अच्छा जी, ये तो हो गया प्रिवेंशन के लिए। देन ऑब्वियसली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्टैब्लिश वेनस थ्रोम्बोसिस, वहाँ पे वैसे हमारा नॉर्मल बेटा प्रोसीजर क्या है, यू स्टार्ट विद हेपरिन फर्स्ट, प्रेफरेबली लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन फॉर द फर्स्ट 5 to 7 days। ठीक है, साथ ही आप वॉरफेरिन स्टार्ट कर देते हो। वाई दिस ओवरलैप, ओवरलैप का क्या मतलब है कि दोनों क्यों देनी पड़ रही हैं आपको, ड्यू टू द रिमेंबर ड्यू टू द डिलेड ऑन सेट ऑफ एक्शन ऑफ वॉरफेरिन, उसका एक्शन फ़ौरन स्टार्ट नहीं होता है, तो यू हैव टू गिव सम पारेंटल फॉर इमीडिएट एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। ठीक है, तो वो नॉर्मली आपका हेपरिन हो गया, फर्स्ट 5 to 7 days के लिए देते हो। उसके बाद यू कैन विड्रॉ हेपरिन और यू कैन कंटिन्यू वॉरफेरिन फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 to 6 months। ठीक है, मगर इन कंडीशंस जहाँ पे देयर इज़ अ नॉन रिवर्सिबल रिस्क, लाइक किसी के आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व्स हैं तो ही इज़ एट रिस्क फॉर द थ्रोम्बोसिस फॉर होल ऑफ हिज लाइफ, तो यू हैव टू गिव इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब है बस आपने देते ही रहना है। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है जी, इफ़ द पेशेंट इज़ प्रेगनेंट तो यू कैन नॉट गिव हेपरिन, सॉरी यू कैन नॉट गिव वॉरफेरिन।
वहाँ पे यू हैव टू ट्रीट विद हेपरिन इंडेफिनेटली, या जितनी देर भी आप ट्रीट करना चाहते हो, थ्रू सबकुटेनियस इंजेक्शन। ठीक है, तो दो चीज़ें होगी ट्रीटमेंट में। प्रेग्नेंट है सिंपली हेपरिन थ्रू आउट और सम अदर पारेंटरल ड्रग, यू कैन नॉट गिव वारफेरिन। मगर इन नॉर्मल वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक पेशेंट फर्स्ट 5-7 डेज हेपरिन, एंड साथ ही आप स्टार्ट कर लेते हो वारफेरिन। देन आफ्टर 5 to 7 days you withdraw heparin and you continue warfarin for a minimum of 3 to 6 months. So this sums up your warfarin. This is the prototype among the oral anticoagulants. ठीक है, उसके बाद ओरल यूज़ जो है, दिस इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स, मगर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लाइक इट्स डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इट्स वाइड स्प्रेड ड्रग इंट्रैक्शंस, ठीक है, एंड इट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये कुछ बड़े बड़े से हैं, तो थोड़े से आपको MCQ पॉइंट्स भी हैं, CQ पॉइंट्स भी हैं। इन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए अब दे आर प्रिपेयरिंग अदर ओरल अवेलेबल एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, जो पारेंट्रल है, दिस कैन नॉट बी गिवन इनडेफिनेटली। ठीक है, पारेंट्रल जो है वो हॉस्पिटल में जाके बंदा लगवाए, सारी उम्र के लिए लगवाता रहे, तो दिस इज़ अ ड्रॉबैक। इसके लिए नई ड्रग्स बनाई जा रही हैं जो ओरली अवेलेबल हैं, टू ओवरकम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बोथ द पारेंट्रल एंड द ओरल वारफेरिन की ड्रॉबैक्स को कवर करके। ठीक है, उसमें आपका एक तो हमने पढ़ा था बेटा DTIs में ओरल था, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में डेबिकेट्रिन, वो देख लेना। और थोड़ा सा आपका ये एक ग्रुप है ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसमें रॉक्साबैन, एपिक्साबैन एंड रिवारॉक्साबैन, ये डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं द फैक्टर 10A। फैक्टर 10A क्या है, दिस इज़ वेयर द बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे जो है कोगुलेशन के, दे कम टुगेदर, दिस इज़ द फाइनल कॉमन पाथवे ऑफ क्लॉटिंग कैस्केड। ठीक है, तो उसको इनहिबिट करते हैं। इनका प्लस पॉइंट क्या है ओवर वारफेरिन, उसका डिलेड ऑनसेट था, इनका रैपिड ऑनसेट है। ठीक है, उसकी वारफेरिन हैज़ गॉट प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ 36 आवर्स, इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, तो दे कैन बी गिवन एज फिक्स डोजेज। ठीक है, और इन्हीं वजह से इट डज नॉट रिक्वायर मॉनिटरिंग, शॉर्ट हाफ लाइफ से। ठीक है, दीज आर न्यू ड्रग्स, दे आर सो फार अप्रूव फॉर एम्बोलिज्म फॉलोइंग हिप और नी सर्जरी। ठीक है, थोड़ा सा आपको नाम पता हो, इनका मैकेनिज्म पता हो, कहाँ इनहिबिट कर रहे हैं, और थोड़ा सा प्लस पॉइंट जो है काइनेटिक्स में, रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट हाफ लाइफ, डू नॉट रिक्वायर मॉनिटरिंग। ये 2-3 जो इसके हैं प्लस पॉइंट्स हैं ओवर वारफेरिन। ठीक है बेटा, तो आपने थोड़ा सा हेपरिन वारफेरिन डिटेल में कर लेने हैं, और न्यू पैरेंटल ड्रग्स और न्यू ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग्स के बस सिर्फ नाम, एक लाइन के मैकेनिज्म और 1-2 पॉइंट्स काइनेटिक्स में उनके, वारफेरिन से उनका क्या प्लस पॉइंट है और हेपरिन से उनका क्या प्लस पॉइंट है, कर लेने हैं। ठीक है जी, होपफुली कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़।